سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دے کر آج ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، اور زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کے سامنے مل بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا یہ نہایت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور انسان کا اپنا نفس بھی آڑے آتا ہے. ان دونوں کا مقابلہ کرنا جہاد سے کم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں ایک اہم بات بتانے والا ہوں. تو صحابہ کرام متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اب آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ حیران ہوئے کہ اب تو ہم میدان جنگ میں تھے اور جان ہماری ہتھیلی، اور اب تو ہم اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں آرام سکون کے ساتھ رہیں گے، وہاں کون سا جہاد ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد بڑا آسان تھا، لیکن گھر میں جب جا کر کے آپ نفس کے خلاف جہاد کریں گے وہ جہاد اکبر ہوگا. انسان اپنے نفس کے ہاتھوں برباد رہتا ہے. بہت ساری باتیں ہم اپنی بات اللہ کی نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور یہ بڑا جہاد ہے. یہ مسجدوں میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ کر کے ان کو اپنا معاون اور مددگار بنا دیں ہم. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ سنانے والے بن جائیں اور ہم سننے والے بن جائیں. بس ہمارا یہ ارمان بھی ہے اور ہماری یہ امید بھی ہے ان سے. یہ تب قرآن کی طرف آئیں گے جب یہ قرآن کا مطالعہ کریں گے. جس دن ان سب کا قرآن کا مطالعہ شروع ہوا یہ سب سے پہلی سیٹ پہ بیٹھیں گے. جب قرآن کا مطالعہ نہیں ہوگا، قرآن کا خاتمہ ہوگا، تو پھر یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا. وہ کہہ رہے ختم کرنے سے اتنا ثواب مل جاتا ہے، اتنی مصیبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا قرآن سمجھنا، اور کس کا قرآن سمجھیں؟ فلاں کی تفسیر الادہ ہے، فلاں کی الادہ ہے، فلاں کی الادہ ہے. اس لیے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ قرآن کے قریب مت جانا. آپ کس طریقے سے بیٹھے ہیں یہ رب جانتا ہے، لیکن 15-20 منٹ آپ نے ان آیات کو دے کر کے اپنے گھر والوں سے، دیگر معاملات سے اپنی سوچ و فکر کو کیا کرنا ہے؟
मुनक़ते करके यहाँ लगा दें। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना, हमारा सुनना, समझना और गौर फिक्र करने के बाद इन आयात को अपने घर वालों के सामने बयान करने की हमें जुर्रत और हिम्मत अता फरमा दे। आइए तर्जुमे की तरफ जाते हैं। उन्वान इसका वही है सूरह शम्स जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम ये जो आखिरी आयात हैं इनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तर्जुमे के साथ। तो कद अफलहा, यकीनन कामयाब हो गया, यकीनन फला पा गया। ये लफ्ज जो है फला से है और कद अफलहा यकीनन फला पाया गया या कामयाब हुआ। ये कुरान में बहुत आता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो फला पाने वाले हैं। तो ये मुफलिहून जो है वो जमा के सीगे में, ये माजी के सीगे में यकीनन कामयाब हो गया। कौन? मन। मन का मैंने बताया था अंग्रेजी में हर वो शख्स, मन मैन, हर वो शख्स यानी वो शख्स, हर वो शख्स कामयाब हो गया जिसने तस्किया किया, हाँ अपना, जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया, जिसने अपने नफ्स को पाक किया, वही कामयाब हो गया। वक़द ख़ाबा, और फिर आ गया कद, यकीनन ख़ाब यानी नामुराद, नाकाम हो गया। मन फिर आ गया वो शख्स जिसने दबा दिया उसको, यानी नफ्स को जो सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, उनको क्या किया? गाड़ दिया। ये वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगा करके वो कामयाब, और जिसने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को ख्वाब गफलत में डाल दिया वो नाकाम नामुराद हो गया। और ये वक्त होता है इंसान को जो अल्लाह देता है, ये बड़ा कीमती वक्त है जिस वक्त आप कुरान के सामने गुजार रहे हैं। इससे बड़ा कीमती वक्त तो कोई नहीं होगा कि आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, फिर अल्लाह आपसे मुखातब है। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि वो शख्स कामयाब और कामरान हो गया जिसने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, जिसने अपनी सलाहियतों की ज़कात निकाल दी। ज़कात के माने ज़कात से। और वो शख्स यकीनन नाकाम और नामुराद हो गया जिसने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को दबा दिया, गलत रास्ते पे लगा दिया। अब ये हमारी अपनी ख्वाहिश है, सलाहियत तो सबके पास है, कान मेरे पास भी है, आपके पास भी है, जुबान आपके पास, मेरे पास, ये हर एक के पास। लेकिन अब ये जुबान हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर अल्लाह के कलाम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुबारक ज़बान है, लेकिन अगर इसके लिए नहीं इस्तेमाल करोगे तो ये गाली गलोच में इस्तेमाल हो जाएगी, ये चुगली में इस्तेमाल हो जाएगी, ये गीबत में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला यहां फरमाते हैं कि मेरा बंदा वही है। अब अल्लाह आगे जाकर के एक कौम का जिक्र करता है, और ये कौम बड़ी बासलाहियत कौम थी। कौन सी कौम थी? कौम समूद, कौम आद, और हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए थे। बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की, शब रोज इनके ऊपर मेहनत करते रहे। तालीम के एतबार से, हुनर के एतबार से,
سب سے بڑے بلند، اور یہ پہاڑوں میں جا کر کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور وہیں جا کر بنگلے اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کی تعمیرات کو کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا، اتنے زیادہ بہتر انجینئر اور بہترین کاریگر لوگ تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہ بنگلے اور ہمارے یہ مکانات اتنے پختہ ہیں کہ اب ہوائیں بھی آ جائیں اور کہیں بارشیں ہو جائیں تو ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے خود قرآن میں کہ میں نے کسی شہر میں کسی زمانے میں اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی ہے جتنی یہ قوم تھی، فکر لحاظ سے، صلاحیت کے اعتبار سے، لیکن شرک کے میدان میں ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ آج بھی تعلیم ہم سب کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن جب قرآن مجید کے قریب نہیں جائیں گے تو ہم سر سے پیر تک شرک میں ڈوبے ہوئے۔ قرآن ہمارے شرک کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، ہمارے دل کو پاک کر دیتا ہے شرک سے۔ اور جس نے اپنے دل کو شرک سے پاک نہیں کیا اس کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور شرک کا بہترین علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ تو شرک ختم ہی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت، کیا کیا تھا؟ اب یہ لفظ ہے جھٹلایا۔ اب میں آپ سے معلوم کروں گا کہ یہ لفظ کذبہ کیوں نہیں ہے، کذبت کیوں ہے؟ یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سمود جو ہے، قوم جو ہے، یہ مؤنث ہے۔ ہمارے ہاں بھی قوم جو ہے نا، لیکن سمود کو ہم جو اپنی زبان میں لائیں گے تو ہم تو مذکر فارم میں لائیں گے، سمود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کذبت سمود، عربی میں جو سمود کی قوم ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یعنی کیا جھٹلایا قوم سمود نے، قوم ہاں جی سمود نے، یعنی سمود والوں نے، سمود ایک قوم ہے، جھٹلایا کس وجہ سے؟ اب دیکھیں ذرا، بی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، بسم اللہ سے۔ دوسرا لفظ ہے طغا یا تغاؤ، لفظ اصل میں یہ طغا ہے اس طرح، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ واو الف لگائیں گے تو یہ جمع ہو جائے طغاؤ۔ اور آگے لفظ ہے ہا، یہ مون کی طرف ہے۔ طغاؤ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طغیانی سے، اردو میں طغیانی آ گئی سمندر میں یا دریا میں، تو طغیانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ارد گرد کی فصلیں کیا ہو جاتی ہے؟ جب انسان کے اندر طغیانی آ جاتی ہے تو وہ ارد گرد لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتے، دائیں اور بائیں سب کو۔ جب قوموں کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو دوسری کمزور قوموں پہ کیا کرتی ہے؟ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہی تھا طاقت کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ کیا کر دیا؟ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کر دیا؟ قوم سمود نے جھٹلا دیا، پیغمبر کو جھٹلایا۔ پیغمبر موجود ہے، وقت کا پیغمبر، بات نہیں مانتی ہے قوم۔ جس طرح آج ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن جب یہ کہا جائے آؤ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو پھر دیکھیں پھر ایک بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم ایسا ہی کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سمود، قوم سمود نے صالح السلام کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ کیا وجہ تھی ان کے اندر؟ غرور تھا، گھمنڈ، سرکشی تھی۔ ان کے پاس زمینیں بے زبردست، یعنی ہری بھری زمینیں، معیشت کے اعتبار سے ٹاپ پہ اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے اوپر، تو یہ تو اپنی خاطر میں کسی کو نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر سمود قوم نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر یہاں تک جھٹلایا، کیا ہوا تھا
इज़िम बासा, इज़िम बासा, जब उठ खड़ा हुआ। ये बासा का लफ्ज तो आपको याद होगा ना, ये बास, ये क्या है? बास। ये लफ्ज है बेसत, उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। मबऊस उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो लफ्ज है। बासा के माने उठाया, उठा। जब क्या हुआ? उठ खड़ा हुआ एक आदमी। अब इसमें एक आदमी कहां लिखा हुआ है? जी सर, इज़िम बासा। इनको इधर लाए ना जी। आ जाए सर, इधर आ जाए, इधर आ जाए, हमारे साथ तावन करें। आ जाए, आ जाए, कुरान सुने। यहां ये कुरान है ना। हाँ जी, आ जाए बेटा, आ जाए, हमारे साथ बैठ जाओ। हाँ, ताकि हम समझ जाएं कि कुरान क्या कहता है। ठीक है, ये क्या हुआ? उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं एक? अब देखें, ये लफ्ज है बासा। एक आदमी खड़ा हुआ। जब मैं कहूंगा बासा, दो आदमी खड़े हुए। और जब मैं कहूंगा बहुत सारे खड़े हो गए तो क्या होगा? बासु। और जब औरत खड़ी हो गई तो क्या होगा? बासत। ये इस तरह पहचानेंगे। इसलिए कुरान को टाइप दिया करें प्लीज। ये कुरान खत्म होने के लिए नहीं आया है, ये समझने के लिए आया है। समझने के बाद इस पे अमल किया जाए। और सबसे बेहतरीन अमल यह है कि समझने के बाद लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। कुरान हदीस में है, वबल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक आयत ही समझ में आ जाए, वो क्या करो। और हम जितने की तिलावत कर रहे थे उसे पूछे, भाई आपने कितना समझा है? तो कहते समझने की थोड़ी पढ़ रहा था यार, मैं तो सवाब की खातिर पढ़ रहा था। यही है ना, वो सवाब की खातिर नहीं है, ये समझने के लिए आया है। अमल की किताब है, इनकलाब की किताब है। ये समझना है कि जब उठ खड़ा हुआ कौन? अशकाहा, बदबख्त आदमी। अशका के माने ये शकी का लफ्ज उर्दू में शकी। और जब इसको ज्यादा होता है तो इसको अशका, बहुत बदबख्त, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। इसके मुकाबले में लफ्जों का अतका, अतका बहुत परहेजगार। आपने कुरान मजीद में पढ़ा है ना कि आप में सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अतका, तुम में सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ वही है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा हो। तो ये देखें, ये कौन है? अशका, बदबख्त। इज़िम बासा, उठ खड़ा हुआ बदबख्त आदमी। हा के माने उस कौम का। एक बदबख्त आदमी उठ खड़ा हो गया, यानी यहां तक कि अब यहां अंदाजा लगाएं कि एक आदमी है पूरी कौम का, और पूरी कौम का एक नुमाइंदा खड़ा हो गया। किस लिए खड़ा हुआ था? उसने कहा बात तो नहीं मानेंगे सबूत सालेह अलैहिस्सलाम की, लेकिन जो ये ऊंटनी मौजज़े के तौर पर हमने कहा था कि मौजज़ा नहीं लाओगे तो हम मानेंगे भी नहीं, ये मौजज़ा तो ले आया। अब जनाब क्या हुआ, ये जो ऊंटनी है इसको पानी भी पिलाना है, एक वक्त का पानी इसको भी देना है। ये हमारी पर बोझ आ गया। अब यार इसको रास्ते से हटाना है। तो लोग डर रहे थे कि क्योंकि ये तो निशानी है, मौजज़ा है, कौन हाथ लगा सकता है। तो एक आदमी ने कहा यार मैं हूं ना यार, आपको क्या जरूरत है। ये एक आदमी, इसका नाम नहीं है यहाँ, लेकिन उस पूरी कौम में से एक बदबख्त आदमी नुमाइंदा बनकर खड़ा हो गया। कौम के किसी एक फर्द ने उसे नहीं कहा कि तुम कर क्या रहे हो। और जब कौम ऐसी सो जाती है और एक बदमाश खड़ा हो जाता है तो पूरी कौम क्या हो जाती है? सो जाती है। तो फिर अजाब सब पे आता है। देखे जरा, फकाल लहुम, तर्जमा करें, फकाला, बस कहा,
लहुम इनसे, रसूलुल्लाह है अल्लाह के रसूल है। ये अल्लाह का रसूल कौन होगा? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इतना होते आपके में लहुम रसूलुल्लाह, हम ज़हन में आता है ना कि रसूलुल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह वो ये जो सालेह अलैहिस्सलाम उस वक्त का पैगंबर, वो अल्लाह के रसूल ने इनसे फरमाया कि ये क्या है? नाक़त अल्लाह है, ये अल्लाह की ऊंटनी है, मौजा है, ख्याल करो इसका। वसुक़याहा, और पानी पिलाना है, हाँ इसको वक्त पे पानी, ये काम ख्याल करें, इसको इस तरह नजर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि सारी कौम मलीमैट हो जाए। लेकिन ये बदबख्त आदमी उठा है, इसने क्या किया? इसने उठा इस इरादे से कि इस ऊंटनी को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि खत्म हो जाए मामला। तो अब पूरी कौम क्या थी? कज़्ज़बत समूद बितग़वा, है ना, यहां क्या हुआ? कज़्ज़बूहु, सबने मिल करके झुठला दिया पैगंबर को। फ़कज़्ज़बूहु, तर्जुमा देखिए, फा के माने बस, लफ्ज़ क्या है? कज़्ज़बा, कज़्ज़बा या कज़्ज़बू, झुठला दिया। और वाव अलिफ यहां पे आ गया, तो वाव अलिफ का तर्जुमा क्या? उन्होंने। और हु के माने उसको, किसको? रसूल को। ये हु किसकी तरफ प्रोनाउन है? रसूल की तरफ। ये हा किसकी तरफ है? ऊंटनी की तरफ। ये जब आएगा ना हु, और मोनस के लिए क्या होगा? हा या हा। और जब ये दो हो जाए तो हुमा, और जब जमा की सीगे में हो जाएगा तो क्या होगा? हुम। और ये मोनस की जगह में क्या हो जाएगा? हुन्ना। ये बाद हिम भी होगा, बाद का हिन्ना भी होगा। ये प्रोनाउन जो है कुरान मजीद के हर सफ़े पर आपको मिलते रहेंगे। कुछ 12,000 प्रोनाउंस। आयात कितनी है? 6,500 है, तकरीबन 6,666 है। और ये कितने हैं? 12,000। तो ये समझने की जरूरत है या नहीं है? जब ये नहीं समझेंगे कुरान किस तरह समझ में आएगा? पहला काम ये है कि इसको समझना है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फकज़्ज़बूहु, इन सब ने मिल करके वक्त के पैगंबर को क्या कर दिया? झुठला दिया। पूरी कौम झुठला रही है। और क्या कर दिया? अब आदमी एक उठा है, लेकिन ये दूसरे क्या है? ये खामोश है। तो गोया सब ने ही पैगंबर को झुठला दिया। फ़अक़रूहा, बस क्या कर दिया? काट डाली, टांगे, ठीक है ना, हाँ उसकी, बस ऊंटनी को कर दिया, कत्ल कर दिया, कोहान काट दिया, पूछे काट दी, जो भी है। अब जो ही इन्होंने ये मुजाहरा, ये काम किया, तो फदम दमा, मलियमेट कर दिया, फदम दमा, बस क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयड, बस तबाह कर दिया। तबाही आ गई, तबाही आई अलैहिम, इन पर। ये जो हिम है ना, यहां मैं लिख रहा हूं, ये अलैहिम। अगर एक होता तो क्या होता? अलैहि। अगर खातून होती अलैहा, और इसी तरह अगर ख्वातीन होती अलैहिन्ना। ये आपको याद हो गया? ये जरूर याद करेंगे। रब्बुहुम, किसने तबाही आई? किसकी तरफ से? रब की तरफ। इनके रब की तरफ से। अच्छा, यहां अल्लाह ताला ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, रब इस्तेमाल किया। अल्लाह नहीं इस्तेमाल हुआ। क्यों? वो रब इनको मुराद दे रहा था, इनको पाल रहा था। ये मुशरिक भी थे, ये जालिम भी थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी हवाएं,
अपना रिस्क इनके ऊपर बंद नहीं किया था। इस रब ने इनके ऊपर क्या कर दी? तबाही मचा दी। बेज़म्बिहिम, किस वजह से? तर्जुमा करें, बे के माने, ये बे के माने साथ से या साथ वजह, और जम के माने गुनाह, और हे माने अपने अपने एक गुनाह की वजह से, एक गुनाह की वजह से रब ने इनके ऊपर अजाब भेज दिया। फसव्वाहा, बस क्या कर दिया? बराबर कर दिया, मसावी। हाँ, इस कौम को, इसको क्या कर दिया? इस कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद करते मलियामेंट कर दिया, जमीन के साथ मिला दिया, खत्म, सफे हस्ती से मिटा दिया। ये जम के माने होता है गुनाह, और जिन कहते हैं दुम को भी जम। ये जब कई जानवर जाता है ना कहीं भी, तो दुम घर छोड़ के नहीं जाता, दुम उसके साथ लगी रहती है। जब आदमी गुनाह करता है तो इस गुनाहगार आदमी के साथ दुम लग जाती है गुनाह की वजह से, और वो दुम उस वक्त तक नहीं कटती है जब तक वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा। ये अल्लाह ने कितना जबरदस्त हमें बता दिया कि गुनाह खत्म होने के लिए क्या करो? मेरे दर पे आ जाओ, आंसू बहा दो, तौबा कर लो, माफी मांग लो, तो मैं तुम्हारे गुनाह सिर्फ माफ नहीं करूंगा, अगर तुमने दिल से वमन ताबा वापस हो गए हो, वो आमना व आमिला सालिहा, तो मैं तुम्हारे माजी के सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, सिर्फ मेरे दर पे तो आ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं कि इनके गुनाहों के एक गुनाह की वजह से इनको हमने क्या कर दिया? अब अल्लाह ही नहीं कर तुमने हज नहीं किया था, तुमने ज़कात नहीं दी, ये नहीं, सारी चीजें नहीं है, बस एक काम गलत हुआ है इससे। कौम एक काम गलत करती है और फिर पूरा एक आदमी बीच में करता है, सारी कौम फिर क्या करती है? रोती फिरती है। ये हमारे साथ हुए मामला बहुत हो गए, लेकिन हम सबक हासिल करने वाले नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जब इनके ऊपर जमीन बराबर कर दी गई और हम कौमों के साथ अब इस तरह करते हैं, बड़ी ताकतवर कौम क्यों ना हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी के अंजाम से डरता नहीं है। वला यखाफु, और नहीं खौफ रखता है, उकबाहा, उसके अंजाम से। हम कभी करते हैं ना इस तरह कोई बात, तो फिर अंजाम से डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अंजाम से नहीं डरता है, क्यों? खालिक है वो। तो आज का सबक था हमारा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपने देख लिया कि अल्फाज आसान भी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कुरान को टाइम नहीं दिया जाएगा तो कुरान बड़ा मुश्किल होगा। ये कौम की तरफ है ना, इस कौम या उकबा की तरफ भी करते अंजाम का, उकबा जमा है, वो हाउस की तरफ जमीर आए। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि ये पूरी जो सूरज शम्स है, इसका हर आखिरी जो है किस पे है? हा पे है। और ये मैंने बता दिया कि ये हा ये मुअन्नस के थे। वह शम्से व दुहाहा, सूरज की कसम, और सूरज चूंकि मुअन्नस है अरबी जुबान में, व दुहाहा, और उसकी रोशनी की। आगे क्या है? वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे चलता है। तो तिलावत के माने क्या है? पीछे पीछे चलना, नक्शो कदम पर चलना। हमारे यहां तिलावत क्या है? कुरान को खत्म कर दो, तिलावत है। तिलावत का माना है कि कुरान मजीद को समझने के बाद इसके नक्शो कदम पर चलने का नाम क्या है? तिलावत है। और ये हा हा शुरू है, देखिए हा हा, तो आप ये समझ जाए कि जितने भी हा हा रहा है तो वो अपने नाउन की तरफ क्या है? इशारा है। तो ये सब जितने भी नाउन वाले लोग हैं, ये अरबी जुबान में मुअन्नस होते हैं,
जिस तरह नफ्स भी है, नफ्स भी अरबी जुबान में क्या है? मुअन्नस है। इसी तरह आसमान मुअन्नस है, इसी तरीके से जमीन मुअन्नस है। इसी तरह जो सूरत शम्स में जो हा के साथ ज़मीर है, आप समझ जाएं कि वो क्या है? मुअन्नस है। तो यहाँ पर भी मुअन्नस की तरफ इशारा है। सुक़याहा, तो ये हा जो है नाका की तरफ है, यहाँ जो है फसव्वाहा ये कौम की तरफ है। इधर इसका भी है कि इसके आखिबत का या उनके आखिबत का, यानी उनके अंजाम कार से अल्लाह को कोई खौफ नहीं रहा। तो ये जो हाँ की ज़मीर है ये मुअन्नस की तरफ है जी। तो जो भी है वो मुअन्नस ही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँ, और अगर आपको समझ बात आ गई है फिर जरूरत नहीं है। जितनी तज़किया किया अपना जी सर, तो आसानी ये होगी कि मेरे ख्याल है कि जितनी तज़किया नहीं किया अपना वो मतलब हाँ नाकाम हो गया, जिसने तज़किया किया वो कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। जिसने तज़किया ना किया, तज़किया ना ये किया, आसानी हो जाएगी। यानी इससे बड़े जिसने तज़किया नहीं किया, तज़किया नहीं किया, ये सही है। दबा के मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूजन। हाँ अच्छा, दबाने दस्सा जो है ये दस्सू से ये मुराद है कि अपनी बच्चियों को जब वो जिंदा गाड़ते थे तो उसको दस्सा कहते हैं। यानी आपके पास सलाहियतें मौजूद है। ये इशारे हैं, किनाए अल्लाह बताता है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है ना। तो कुरान मजीद इशारों की जुबान करता है, किनायों से बात समझाता है कि आपको अल्लाह ने इतनी दी सलाहियतें दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, अकल दी है, बसारत दी है, कान दिए हैं, तो ये कुरान के लिए क्यों नहीं लगा रहे हो? ये है ना। तो जब को कोई में कौमें जो है ब्लाइंड फेथ करती है तो वो कौमें क्या हो जाती है? धड़ाम से गिर जाती है। जिस तरह हमारी कौम है, हम जितने ब्लाइंड फेथ करने वाले लोग हैं ना, और कोई नहीं है। हमारी भेड़ चाल, ब्लाइंड फेथ वालों के लिए भेड़ चाल, वो भेड़ चाल किसे कहते हैं? एक भेड़ गई आगे और उसने वहां जाकर के, वहां पे ये कुर्सी थी, उसने यहां से छलांग लगाई, आगे जाकर खाई है, उसके अंदर गिर गई। अब इसको हटा दे। अब जो ही भेड़ यहां आएगी ना, वो यहां छलांग लगाई, क्योंकि आगे वाले ने, और जो आगे वाली गई है, जो खाई में गिर गई है, वो भी जाकर के। तो हमारी कौम ऐसी नहीं करती कि जिसने जिस पीर को बस और जिस बड़े को, लीडर को चुन लिया, अब वो बर्बाद भी है, तबाह हाल भी है, चोर भी है, डाकू भी है, फिर भी उसके पीछे हम क्या करें? भेड़ चाल है या नहीं है? या कुरान मौजूद है, कुरान से रहनुमाई हासिल करने के बजाय हम दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे। उम्मत मुस्लिमा में जितनी दरारें हैं किसी और कौम में तो नहीं है। मसलक परस्ती यहाँ है, शाहीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रियली बता रहा हूँ, हम लोग बहुत दूर हो गए। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का तालिब इल्म बना दे, कुरान को समझने वाला बना दे, कुरान पे अमल करने वाला बना दे। और जो लोग शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, नन्हे मुन्ने बच्चे, खूबसूरत बच्चे हमारे चले गए, उन सब के लिए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा दे। और ये हम सब का सदमा है। ए अल्लाह, इस सदमा को बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत और जुर्रत अता फरमा दे।